हमारा फोर्थ मैरीगोल्ड इंग्लिश का फिफ्थ पार्ट चल रहा है, फिफ्थ लेसन हेलन केलर लास्ट। इट वॉज समर ऑफ 1880, पेज नंबर हमारा है 81। अ हेल्दी बेबी वॉज बॉर्न एंड बेबी गर्ल वॉज बॉर्न, और उनका स्मॉल टाउन एलाबाना बामा के स्मॉल टाउन में उनका जन्म हुआ। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। बट वन डे द बेबी became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more than we could do. The baby was not live may not live। तो बहुत ज़्यादा सीरियस है बेबी, अभी बेबी जिएगा नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था। Helen lived, but she was not the same after her illness. Sometimes it was wrong. Her mother said at least they found out what was wrong. तो मम्मी काफ़ी संतुष्ट थी, वो कह रही थी कि एटलीस्ट हमको पता तो चला कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बेबी कुड नॉट सी और हियर। तो अब हुआ ऐसा कि फीवर का जो असर था बच्चों, वो ना सुन सक रही थी ना वो देख सक रही थी। द बेबी ग्रू इन टू लिटिल बर्ड, हर पेरेंट्स अ लिटिल गर्ल, हर पेरेंट्स फेल सॉरी फॉर हर। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, गेव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स। हर फादर कुड से, Helen could not hear or see or bright of bird, her little girl. So people thought Helen could not learn anything. वो सब लोग उन पे ऐसे सोच रहे थे कि अब ये की कोई काम की नहीं है। Her mother did not agree. Helen is very smart, she said. The problem is, how can we reach her? She is locked up inside her. Helen began to grow wild. She could not let anyone comb her hair, her clothes. तो ये बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला निकला, और एलन कुछ कुछ करने लगी। वो बोल नहीं पा रही थी, वो कह नहीं पा रहे थे। Her parents thought that she would find a teacher. So Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help her. Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave her the word doll, D-O-L-L, spells doll. She spelled the word with the fingers. तो उन्होंने डॉल का मतलब उनको समझाया बच्चों। तो ये है हमारी नेक्स्ट पेज पे ये टीचर जो डॉल उनको बुलवा रही है। She felt that the word of her fingers into Helen's hand, and she had the letters special hand signs. तो हेलन copied her teachers and spelled DOLL too, but she did not understand what she was going or doing. Helen liked Miss Sullivan. She was bright and strict, but kind. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make her understand. So one day her teacher had Helen put her hand into the running water. So she spelled water. Suddenly Helen understood the water means something wet running over the hand. She understood the words. Her words were important in the words. So words would tell her everything she wanted to know. तो ये बच्चों अप्रीम एक कहानी है अपनी मम्मी की, जो ये सुलिवान टीचर जो थे बच्चों, वो हेलन को सिखाती है कि वाटर कैसे बोले, कैसे वो रनिंग पानी होता है, मतलब
बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स उनके हाथों पे वो लिखते हैं, तब जाके उनको पता चलता कि पानी को ये कहते हैं। अब न्यू वर्ड्स में हमने ये सीखे, डियरली, इलनेस मतलब बीमारी, अग्री मतलब जो आप बोल रहे हो मैं हाँ कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट। 83 पेज पे हमारा इतना हो गया। अभी आपको समझने की बात है कि क्वेश्चंस में क्या दिए हैं। समटाइम्स इफ इट्स रॉन्ग सेड हेलेन्स रॉन्ग, व्हाट वाज रॉन्ग विथ हेलेन। हेलेन को बुखार हुआ था और बुखार के कारण वो बोल नहीं पा रही थी और सुन नहीं पा रही थी। ऑल्दो हेलेन कुड नॉट हियर और सी व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज शी, शी वॉज अ वेरी स्मार्ट गर्ल हु एग्रीड टू हेल्प हेलेन। तो मिस सुलेवान हेल्प Helen. What did Miss Sullivan help? How did she help? She used to write 1,000 words on her hands. What did Helen learn about the teacher but her hand into running? What was the most important thing that Helen finally understood? That using sign language make these letters with the hand. Check. Spell these words through the hand sign. Helen was, how did people who cannot see read? तो वो लोग साइन लैंग्वेज से रीड कर सकते हैं. What is the script for the children who cannot see और, तो उनके लिए भी स्क्रिप्टिंग पूरी ब्रेल लैंग्वेज से बच्चों लिखी गई होती है, तो वो पढ़ के वो बोलते. हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी? तो हम भी उनके हाथों पे लिख सकते हैं, तो वो फील करके हमें जवाब देंगे. लुक एट द साइंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. 84 देखिए हमारा हुआ है. देखिए ए कैसा है, बी, सी, डी, ई. ये तो आप भी कर सकते हो, देखो बहुत इजी है. जी, एच, आई, जे, के, एल, एन. ये एल तो कितना इजी है. एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स. है ना प्यारे प्यारे एकदम सिम्बॉल्स. देखो किसी को भी आएगा. वाई और जेड. तो मैच द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंसेस बिलो एंड जॉइन द वर्ड्स. कौन से हैं, चलिए देखते हैं. Helen lived with her illness, lived after her illness. So she did not understand what she was doing. She could not see to hear. She was a kind to Helen. Call Miss Sullivan. Helen opened the words. She did not understand what she was doing. तो इसमें हम करेंगे मैच द कॉलम. ए को बी से जोड़ेंगे बच्चों. फिर है हमारा लेट अस डू समथिंग. तो उसके पहले ये हमारा पेज है जो हमारा रह गया है, तो चलिए देख लेते हैं इनको भी. ये है टीम टाइम. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. हमेशा. शी वॉज ऑफन एंग्री. समटाइम्स कभी कभी वो लेडी फ्लोर पे होती है. हर पेरेंट्स नेवर स्कोल्डेड हर. आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस राइट हियर नाउ. तो ये आपको लिखने हैं. ओबे योर पेरेंट्स. यस. ऑलवेज हमेशा. ऑफन मतलब कभी कभी. समटाइम्स मतलब कभी कभी, है ना. तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है. आपको जैसे भी आए आप कर लेना. नहीं है तो रचना मैम तो है ही आपको फिल करके देने के लिए. अभी आप पेंसिल से फिल कीजिए. फ्रॉम न्यूज़पेपर्स टू ओल्ड मैगजीन्स. आपको कलेक्ट करनी है स्टोरीज़. तो आपको पिक्चर स्टोरीज़ बनानी है. अगर कोई अच्छी सी स्टोरी आपके दिमाग में है. फिर पेटी पप सिंग. आई हैव अ लिटिल सिस्टर. शी कॉल हर पेटी पेप. दे कॉल हर पेटी पेप. शी वेव्स इन द waters deep deep deep. She climbs up the mountains high high high. My pretty little sister, she has just one eye. Who is the pretty little sister? A star. है ना, उनको एक ही आँख है. तो ये मेरी बहन है जो पानी को वेड्स करती है डीप डीप डीप. और
वो क्या करती है, क्लाइंब करती है माउंटेन्स, हाय हाय हाय। तो ये मेरी सिस्टर है और उनको एक ही आँख है। कौन है वो है स्टार, सितारा। 89 हमने यहाँ पे फिनिश किया। अब बच्चों हम टीचर्स इसमें क्या हम आपको सिखाने की कोशिश में है कि आप वार्म अप कीजिए, आप कैच द थीफ कीजिए, गेम्स खेलिए घर पे, बिल्कुल बोर मत होइए, रीडिंग टाइम, शेयरिंग टाइम, आपके विचार आदान प्रदान कीजिए, क्रिएटिव टाइम कीजिए कि ये लेसन पढ़ा तो इसमें नया वर्ड ये आया है। आप ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक लेटर्स में लिख सकते हो, लैंग्वेज में आप समझा सकते हो, बोल सकते हो, और एनवायरनमेंट में जो भी पेपर्स आते हैं आपके घर पे वो आप अच्छे से जमा कर सकते हो और उसके बारे में इत्यादि नॉलेज लिख सकते हो। तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। हम मिलेंगे आपको नए सैम में। ये सैम हमारा सैम 1 यहीं फिनिश होता है। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं सेकंड सैम में। बाय बाय।